Assalamu alaikum students of class 6. How are you all students? Hopefully you all will be fine and safe at your homes and keeping the fast of Ramadan. Okay students. As you know that we have started the chapter atom and its structure. Okay, we have started the chapter atom and its structure. In the previous lecture I have given you a brief introduction of atom and its structure. In today's lecture, it is my second lecture about this chapter atom, and in today's lecture I would like to repeat few important points about atom, then we will to study further topics. Okay, now students, what we have studied about atom? We have studied about atom, that atom is the smallest particle. What is this? It is the smallest particle of matter. Okay, which cannot be seen by the naked eye. इतना छोटा पार्टिकल होता है कि ये naked eye से नज़र नहीं आता है, हमें naked eye से हम इसको देख नहीं सकते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है. ठीक है, और जो है ये कंसिस्ट करता है 3 फर्दर पार्टिकल्स पर. ठीक है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं. ठीक है, एटम कंसिस्ट करता है कुछ और पार्टिकल्स पे जो कहलाते हैं सब एटॉमिक particles. I would like to tell you about atom. Interesting point that atom is a Greek word, and it has been taken from the Greek language. First of all, it was called as atomos. Okay, atomos. Atomos means indivisible. Indivisible. Okay, indivisible. Why indivisible? Because it is already very small, so it cannot be divided into 2 parts or into further parts. So that's why it is indivisible, right? ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो indivisible होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है किसी मैटर का जो indivisible होता है. ठीक है, तो इसका वर्ड इसके लिए पहले एटॉमस का वर्ड यूज़ किया गया जो कि ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका मीनिंग है indivisible. तो फिर बाद में एटॉमस को जो है ये चेंज होते होते एटम कहलाने लगा. शॉर्टली ब्रीफली इट वाज कॉल्ड एज एटम. ठीक है, ओके. ना एटम जो बना है, एटम और कुछ पार्टिकल से बना है. ठीक है, उनमें कौन से पार्टिकल्स हैं, जो जिन पार्टिकल से बना है हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, नाउ व्हाट आर दोस सब एटॉमिक पार्टिकल्स? दोस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नेम्ड एज नंबर 1 protons, number 2 neutrons, number 3 electrons. Okay, number 1 protons, number 2 neutrons, number 3 electrons. Okay, I will show you the structure of the atom. It is the atom. Basically atom consists on a central part that is called as nucleus. ठीक है, एटम किस में कंसिस्ट करता है? ये बेसिकली एक 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है. ठीक है, वन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. ठीक है, एक जो पार्ट है उसका न्यूक्लियस है. अच्छा, इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बी इन द न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटॉन्स जो भी हमने पढ़े कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के. कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. तो उसमें से जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में होते हैं. किसमें होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में. ठीक है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एटम. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम. ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. ओके, इन द न्यूक्लियस there are protons and neutrons of the atom, and around the nucleus, right, the electrons exist. The third particle electrons exist around the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस जो है ये आपके पास ये सेंटर में होता है. इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसी के अंदर होते हैं. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय a circle, this type of point. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम इसमें ऑर्बिट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स
I will tell you few characteristics of protons and neutrons. ठीक है, the most important characteristic of proton that protons are heavy. ठीक है, protons, ठीक है, protons they have the weight. ठीक है, they are heavy. They are heavy. ठीक है, in weight and they possess the positive charge. कौन सा चार्ज होता है? Positive charge. ठीक है, they possess the positive charge. While neutrons, which are in the nucleus, they are also heavy in weight. ठीक है, इनका भी weight heavy होता है, heavy weight के होते हैं, but they have no charge. ठीक है, they have no charge. So that's why they are called as the neutral particles. Means they do not have positive charge, they don't have negative charge. ठीक है, so that's why they are called as the neutral particles. They don't carry any charge. Protons carry positive charge. While electrons carry electrons, they carry negative charge and they are very light in weight. बहुत ही light होते हैं ये weight में. क्या होते हैं? बहुत ही light होते हैं weight में. तो क्या होता है जब ये light होते हैं, ठीक है, तो और ये एक तो ये light होते हैं और secondly ये जो protons के ये न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, light होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं. और एक और प्रॉपर्टी इनकी है, ये है कि they can move. ठीक है, they move continuously, they show the movement, they never stop. ओके स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी स्टॉप नहीं होते, ये कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहे होते हैं. जबकि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होते हैं, न्यूक्लियस पे जमे रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूट्रॉन्स जो वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वहाँ से अपनी जगह से नहीं हट सकते वो. ठीक है, वो भी एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं. जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम. ठीक है, ओके, That's why they have the light weight. इनका weight बहुत light होता है और ये बहुत fast movement करते हैं, जिसकी वजह से इनका weight भी बहुत light होता है. इनका light weight इनको movement करने में help करता है, जिसकी वजह से वो around the nucleus जो है ये move कर रहे होते हैं. ठीक है, okay. Now one more term is the orbit. Orbital. Okay, orbital. Okay. Now what is the orbital? The way, the predetermined way in which the electron move is called as the orbital. ठीक है, ऑर्बिटल क्या होते हैं? प्रीडिटरमिन्ड वे. ठीक है ना, यानी जो है ऐसा रास्ता जो कि पहले से डिसाइडेड है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले से डिसाइडेड है, ऐसा रास्ता जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले से डिसाइडेड है, उनको उसी रास्ते पे मूव करना है, उसके अलावा किसी और रास्ते पे मूव नहीं करते. वो कहलाता है प्रीडिटरमिन्ड वे एंड इट इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल. क्या कहलाता है? ऑर्बिटल. यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले से जो नेचुरली इनके लिए डिसाइडेड रास्ता है, जो कि राउंड फॉर्म में है, जो कि न्यूक्लियस के इर्द है, जो कि सर्कल फॉर्म में है. ठीक है ना, तो उस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस मूवमेंट करते हैं. दे नेवर स्टॉप. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कौन से यहाँ नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, मतलब कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं राउंड फॉर्म में. ठीक है, दे नेवर स्टॉप एंड they show the movement in the predetermined way. इनका जो पहले से डिसाइडेड रास्ता है, जो राउंड रास्ता है, इस पे देखिए मूवमेंट शो कर रहे होते हैं और इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द एटम. थोड़ा सा पॉइंट्स रिपीट करते हैं एंड स्टूडेंट्स. ठीक है, क्या होता है एटम? होता है एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. ठीक है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. यानी जो मैटर है वो एटम से ही मिलकर बनता है, बेसिक यूनिट है. बहुत सारे एटम्स मिलकर मैटर को फॉर्म करते हैं. ठीक है, एटम आपको पता है कि व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एनी सब्सटेंस व्हिच विल ऑक्यूपाई द वेट एंड इट विल हैज द वॉल्यूम. ठीक है ना, जिसका वेट होता है और जिसका वॉल्यूम भी होता है, यानी कुछ जगह लेता है, स्पेस लेता है, उस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका वेट होता है. ठीक है, इट विल हैव द वेट एंड इट विल ऑक्यूपाई द स्पेस और वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज द मैटर. हर वो चीज़ जो जगह लेती है और उसका वेट होता है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक वुड, लाइक मेटल्स, लाइक एनीथिंग, एनी सब्सटेंस लाइक chalk, pen, pencil, anything. Okay students, so these all are made by एटम. सब एटम से मिलकर बने हैं. अच्छा, एटम क्या होता है? एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. यानी जो मैटर है उसका बेसिक यूनिट होता है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव इट एग्जाम्पल लाइक वॉल है. वॉल का बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है. ठीक है ना, यानी एक ब्रिक से मिलकर पूरी वॉल बनती है. एक ब्रिक, फिर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, चौथी ब्रिक. ठीक है, तो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर क्या करते हैं? एक वॉल को फॉर्म करते हैं. इस तरह से बहुत सारे एटम्स मिलकर कोई एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब एटम कैसा होता
होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एटम एंड हाउ इट इज। ठीक है, एटम बहुत स्मॉल होता है, एटम इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स एज सच आर इंडिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल भी होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, दे आर मेड बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स, fundamental like subatomic particles are also called as the fundamental particles, ठीक है। what are those fundamental particles? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। अच्छा, अब एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम बेसिकली दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक तो न्यूक्लियस है और दूसरा है ऑर्बिटल। क्या है? एक है न्यूक्लियस ऑफ एटम, दूसरा है ऑर्बिटल ऑफ एटम, इनके ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज, प्रोटॉन्स आर हैवी इन वेट, न्यूट्रॉन्स आर आल्सो हैवी इन वेट एंड दे बोथ आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। दे कैन नॉट गिव देयर पोजीशन, ये यहीं पर होते हैं, इनसे हट नहीं सकते और ये अपनी जगह पे होते हैं। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्या है? न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता। While electrons they are very light in weight, बहुत हल्के होते हैं वेट में, so that's why they can move in a predetermined path, ठीक है ना, जो इनका पहले से डिसाइडेड रास्ता होता है, predetermined वे होता है, उसमें वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मूव कर रहे होते हैं, they can not stop, they never stop, ठीक है, and the way in which they show the movement is called as orbital, यानी जो एटम है बेसिकली न्यूक्लियस पे और ऑर्बिटल पे कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। That is the important basic points about the atom, students. Okay, now I can give you one example. I will give you few examples of the different atoms. ठीक है, मैं आपको कुछ examples देती हूँ, ठीक है, atoms के। For example, I can give the example of like hydrogen atom. ठीक है, hydrogen atom. It is very simple atom. ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यू नो दैट वी कैन फाइंड द हाइड्रोजन इन एयर, एयर में हमें हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है। सो इट इन द न्यूक्लियस इट हैज वन प्रोटॉन एंड देयर इज नो न्यूट्रॉन, ओनली हाइड्रोजन इज द एटम व्हिच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी इसमें प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के अलावा जितने एलिमेंट्स है, जितने एटम है, सब में न्यूट्रॉन भी होता है, बट इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन दैट इट डजंट हैव एनी न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द nucleus of the hydrogen. It is one electron, okay, we show the electron by point or by circle, ठीक है, in this way. So and it is the orbital, ठीक है, ये orbital है, हाइड्रोजन एटम का orbital है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, it is the nucleus and in this proton is one and it carries पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन देयर इज नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ही नहीं, और किसी में न्यूट्रॉन होता है तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, राइट। अच्छा, वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन एनी एटम, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, लेकिन हमेशा हर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं। एक नंबर जैसे लाइक प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द एटम, ठीक है। लाइक इन कार्बन एटम सिंपली आई टेल यू, इन कार्बन एटम देयर आर 6 प्रोटॉन, इन कार्बन एटम देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है, एंड इन कार्बन एटम देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एटम स्टूडेंट्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ पॉइंट्स इसके देखेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, ओके ओके स्टूडेंट्स। Okay, now I would like to move towards the homework, students. Okay, in the homework, in the previous lecture I have said you to make the title page of the chapter. You can write chemistry portion and then make the title page and write the name of the chapter, atom and its structure. Then you can see the question number 1 over the screen. Define atom. The atom is a basic unit of matter. Matter consists of very small indivisible particles known as atom. In Greek language, atomos means indivisible. Nowadays called atoms. Okay, so this is the answer of question number 1. Now move towards the question number 2, students. Question number 2 is on which parts atom consist? Define them.
it is basically it is the structure of an atom has been asked in this question. So we will put the heading structure of an atom in the answer. ठीक है, आंसर पे आप heading डालेंगे structure of an atom, then you will write atom consists on two basic parts. ठीक है, parts such as nucleus, orbitals. Okay, then after that put the heading of nucleus, then you will define atom consists of a dense centrally located nucleus. The nucleus of an atom contains fundamental particles such as protons, positively charged particles, and neutrons, no charge neutral particles. Full stop. Okay. Then after that you will put the heading of orbitals. ठीक है, orbitals की heading डालेंगे, यानी जो है atom है orbitals पे भी consist करता है. Then after that you will define the orbitals, students, or in the orbitals you will define like the fundamental particles, orbitals, the fundamental particles, electrons, negatively charged particles move in certain predetermined paths called orbitals. It is the definition of orbitals. After that look at the question number 3, students. The question number 3 is like name fundamental or subatomic particles of an atom. Draw a diagram of an atomic structure. ठीक है ना, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं इनके नेम बताइए और जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की डायग्राम ड्रॉ करें. ठीक है, सो आंसर इज दैट फॉलोइंग आर द फंडामेंटल और स्लैश बिस और. ठीक है, सब एटॉमिक following are three fundamental / subatomic particles of an atom. Number 1 protons, number 2 neutrons, number 3 electrons. After that you will draw the diagram. From the page number is 56 for the diagram of structure of an atom. So you can draw the diagram from the book structure of an atom. So these are the question answer for today. Okay students, thank you, take care, Allah Hafiz, and do complete your homework. Okay, I have given you 3 question answer for today with diagram for the structure of an atom. Please draw them neatly, keep your work up to date. Thank you, take care, Allah Hafiz.